Hello friends, welcome back. Now we'll dealing with another section of general exceptions which is section 84. Section 84 deal करता है with the unsoundness of mind. Unsoundness of mind से deal करता है. तो अगर मैं आपसे एक question पूछूं, for example, there was a very famous actor Praveen Babi. So you must have heard the news that she was suffering from schizophrenia. Schizophrenia एक दिमागी बीमारी होती है. It is unsoundness of mind. सो अगर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है एंड सपोजिंग हम ये मानते हैं कि मिस प्रवीण बाबी उस अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में इफ शी कमिट्स अ मर्डर और इफ शी कमिट्स अ थेफ्ट कैन शी बी मेड लायबल. हम उसको आईपीसी के अंदर लायबल कर सकते हैं और वेदर शील बी फ्रीड और शील बी एग्जेम्प्टेड या फिर वो लायबल नहीं होंगी. सो द आंसर लाइज इन सेक्शन 84. तो सेक्शन 84 सारे ही अनसाउंड पर्सन्स को उनके द्वारा जो एक्ट कमिट किया जाता है उनके लिए एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर देता है. दैट इज दे विल नॉट बी लायबल फॉर द क्राइम, दे विल बी कंप्लीटली एक्सॉल्टेड. ओके, so now let's understand that section 84 में the words which have been used are unsoundness of mind. So the major questions which might have come in your mind is why unsoundness is used and why not the term idiocy or why not the term lunacy, है ना. तो idiocy भी तो यूज़ हो सकता था, lunacy भी यूज़ हो सकता था. So why these terms are not used? Before going further, आप मुझे ये बता दीजिए कि idiot बोलते किसको हैं. So the person who is unsound from the very birth, जो स्टार्टिंग से जब से उसका जन्म हुआ ही इज़ अनसाउंडनेस, ही इज़ अनसाउंड. सो वो ठीक नहीं हो सकता. दैट पर्सन इज कॉल्ड एन इडियट. और एज स्टीफन हैज़ टोल्ड दैट इडियट वो भी हो सकता है विच पर्सन cuts the head of some other person just for the sake of fun, because when he'll get up in the morning he'll search for the head and उस person को अपना head नहीं मिलेगा, है ना. सो इसे देख के उसको बहुत मज़ा आएगा. सो दिस इज़ हाउ स्टीफन हैज़ ऑल्सो टोल्ड व्हाट एन इडियट कैन बी. इडियट वो पर्सन भी हो सकता है एज टोल्ड बाई मैनी जूरिस्ट कि जो काउंटिंग नहीं कर सकता. ही कैन नॉट काउंट फ्रॉम 1 to 10, 20. ये सिंपल बेसिक काउंटिंग नहीं कर सकता. द वन हु डज नॉट नो हिज नेम, है ना. सो दीज ऑल पर्सन्स आर कॉल्ड इडियट. सो ये तो इडियट हुआ. एंड नेक्स्ट इफ आई टेल यू कि व्हाट इज़ अ ल्यूनेटिक पर्सन. Lunatic persons are those persons who are not unsound from the very birth. वो जन्म से तो अनसाउंड नहीं थे, वो बाद में अनसाउंड बने हैं. एंड ज़रूरी नहीं है कि जब से वो बने हैं तब से वो कंटिन्यूसली अनसाउंड रहे. सो देर आर पीरियड्स जहाँ पे वो एज अ सेन पर्सन बिहेव करते हैं. Okay, so there are periods in which they behave like a sane person. So there are periods in which there is no unsoundness, and those periods are called lunatic intervals. So we have understand what is idiot. We have understand what is lunatic. So जो unsound है ना, English law में if you'll see the word insanity has been used, but Indian law में as we can see the word unsoundness has been used. Both are same. उसमें कोई difference नहीं है. Both are same. What is here is कि unsound जो word है it is more broad, because unsound में देखो क्या क्या आ रहा है. Unsoundness is including within itself idiot, okay, a lunatic person or a madman, a person who is in unconscious state. Unconscious state, it is also called automatism. So what is automatism is basically any reaction that occurs automatically without any conscious thought. So if you're having a reaction but आप उसको सोच समझ के नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट हैविंग अ कॉन्शियस थॉट. फॉर एग्जाम्पल somnambulism. Sorry, I could not pronounce it. So what happens, somnambulism is sleepwalking basically. So अगर मान लो कोई person है, you have seen in many movies ना ये बीमारी somnambulism की. तो अगर कोई sleepwalking करते हुए if a person does any crime, तो उसको भी section 84 के अंदर cover किया जाएगा and the defense will be provided. Because you must appreciate this fact that when a person is sleepwalking, somnambulism में है, तो वो unconscious act है उसका. His cognitive faculties are not intact. उसके सोचने समझने की बुद्धि है ना, वो नहीं काम कर रही उस वक्त, और इसलिए वो जो एक्ट कर रहा है वो उसका कॉन्शियस एक्ट नहीं है. इट इज़ नॉट विद अ गिल्टी इंटेंशन. तो इसीलिए इसे भी सेक्शन 84 में एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पॉइंट कि इंटॉक्सिकेटेड पर्सन भी कवर्ड है.
सो यहाँ पे यू मस्ट अप्रिशिएट दिस फैक्ट। आप बोलोगे मैम ये इंटॉक्सिकेशन तो सेक्शन 85 में भी है। करेक्ट, वेरी करेक्ट। इंटॉक्सिकेशन के लिए जो सेपरेट डिफेंस है दैट इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 85, लेकिन सेक्शन 84 में इंटॉक्सिकेशन की एक स्पेसिफिक वैरायटी विच इज़ डेलीरियम ट्रेमेंस, दिस ओनली इज कवर्ड। What is delirium tremens, students? Delirium tremens is basically a situation when due to incessant intoxication or incessant taking of ganja, what happen is that कि जब आप ये सब ज़्यादा लेते हो तो your brain cells might get damaged beyond repair, तो ब्रेन सेल्स ही वहाँ डैमेज हो गई हैं। सो इट इज़ नॉट मियरली इंटॉक्सिकेशन। अब चूंकि आपकी ब्रेन सेल्स डैमेज हो गई हैं, इट हैज़ कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। I hope this is clear. So not every kind of intoxication, but only the intoxication जो आपकी delirium tremens वाली है that is covered. So I hope it is clear कि इसमें क्या cover हो रहा है क्या नहीं। And now let's move forward and see what is further provided. तो हम बात कर रहे थे cognitive faculties intact नहीं होती हैं, उन्हीं को protection दिया जाता है। So what do you mean by cognitive faculties? So cognitive faculties होती है ना सोचने समझने की बुद्धि, that is your organic capacity to think what is wrong, what is right, है ना, गलत सही में भेदभाव करने की आपकी जो क्षमता होती है, सोचने समझने की जो आपकी बुद्धि होती है, that is what is called cognitive faculty. So देखो for example आपको कॉग्निटिव फैकल्टीज़ नहीं इंटैक्ट है तभी आपको डिफेंस मिलेगा। आपको विल या इमोशंस जो डिस्टर्ब हो गई हैं उसके लिए डिफेंस नहीं मिलेगा। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। ओके, सो एग्जाम्पल समझो कि यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम सम एग्ज़ाम्स, सपोजिंगली आप प्रिपेयर करो उस एग्ज़ाम के लिए, या फिर हाँ तो उस एग्ज़ाम की डेट ही नहीं आती है। सो यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, है ना, आप आ चुके हो दूसरे स्टेट में आ चुके हो एंड एग्ज़ाम्स अचानक से पोस्टपोन हो गए है ना, तो फिर यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, यू स्टार्ट बिहेविंग, यू स्टार्ट थ्रोइंग द थिंग्स हियर एंड देयर। तो ये जो आप कर रहे हो ना दैट इज़ ऑल्सो द सिम्टम्स ऑफ अ मैड पर्सन। ये आपका काम एक पागल व्यक्ति जैसा ही है। कोई भी बोलेगा अरे ये तो पागल हो गया, तो ये काम है आपका पागल व्यक्ति जैसा ही है। बट विल इट बी गिवन द प्रोटेक्शन ऑफ सेक्शन 84? नो, बिकॉज जैसे ही मान लो मैं आपको बोलती हूँ क्योंकि डोंट वरी आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट डे ही है, सो रिलैक्स नाउ एंड आप अच्छे से बिहेव कर रहे हो, है ना। सो नाउ आपकी सोचने समझने की शक्ति वापस आ चुकी है ना, यू हैव स्टॉप्ड बिहेविंग एबनॉर्मली। सो यहाँ पे ना कॉग्निटिव फैकल्टीज आपकी इंटैक्ट है, भले फॉर टेम्पररी टाइम ड्यू टू विल एंड इमोशंस आप एक पागल इंसान की तरह बिहेव करने लगे थे। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। उस चीज़ को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, ओनली व्हाट इज़ प्रोटेक्टेड इज़ कि आपकी सोचने समझने की शक्ति नहीं है एंड देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ओके, अब आप ये समझो कि इट इज़ बेस्ड ऑन टू मैक्सिम्स। सो दिस सेक्शन 84 विच इज़ गिवन protection to unsound person is basically based on two maxims, one being actus non fece trium nisi mens tria। आपको ये मैक्सिम तो आपने सुना ही होगा। सो व्हाट हैपन इज दैट, मान लो कि ये एक्टस रियस है, एक्टस रियस इज बेसिकली द एक्ट, और ये मेंस रिया है ना, ये तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिखा है। तो एक्टस रियस और मेंस रिया का ये जो कॉन्करेंस होता है ना, ये दोनों जिस टाइम पे मिलती है, दिस इज़ पनिशेबल। आई होप दिस इज़ क्लियर। बट अगर एक पर्सन है जो कि मेंस रिया फॉर्म ही नहीं कर सकता है ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ माइंड, तो अगर वो मेंस रिया फॉर्म ही नहीं कर सकता है तो ही कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट। सो आई होप दिस मैक्सिम ये क्लियर कर देता होगा कि हाउ अनसाउंड पर्सन्स विल बी गिवन एन एग्जेम्पशन। द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्यूरोसी नल्ला वॉलंटास एस्ट। What this maxim is saying? So this maxim is saying that a mentally impaired or incapable person who cannot sign a will or cannot make a contract, तो अगर कोई पर्सन विल भी नहीं बना सकता, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बना सकता, सो ही कैनॉट फ्रेम द नेसेसरी इंटेंट ऑफ माइंड टू डू अ क्राइम, तो वो क्राइम भी नहीं कर सकता है एंड हेंस दे शुड बी एग्जेम्प्टेड। आई होप ये क्लियर है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी व्हाट इज सेक्शन 84। सेक्शन 84 क्या बोल रहा है? सेक्शन 84 इज सेइंग एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। हम इसको आगे तोड़ के समझेंगे सब कुछ, बट नाउ एक बार रीड कर लेते हैं हम इसको। तो सेक्शन 84 सेइंग नथिंग इज एन ऑफेंस। सो अनसाउंड पर्सन के द्वारा किया हुआ कोई भी एक्ट, दैट इज एनी एक्ट डन बाय अनसाउंड पर्सन, विल नॉट बी रिगार्डेड एज एन ऑफेंस। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ऑफेंस कहाँ डिफाइंड है आईपीसी में? ऑफेंस है डिफाइंड
सेक्शन 40 ऑफ IPC। सो अनसाउंड पर्सन के द्वारा किया हुआ कोई भी कृत्य वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं शामिल होगा अगर जो पर्सन उसे कर रहा है एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, है ना, एट द टाइम ऑफ डूइंग इट का मतलब है एट द टाइम ऑफ डूइंग द ऑफेंस। सो ऑफेंस करते वक्त बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मतलब यहाँ पे मेडिकल मेंटल डिफेक्ट की वजह से, ओके तो जब वो ऑफेंस कर रहा है उस वक्त मेडिकल मेंटल डिफेक्ट की वजह से दैट पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ दैट, उसको नेचर ही नहीं समझ में आ रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग, और ही इज़ नॉट एबल टू नो दैट द एक्ट इज रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ, है ना। तो इस सारी चीज़ों को आइए हम समझते हैं डिटेल में आगे। सो व्हाट आई हैव टोल्ड यू इज, सो वी हैव सीन हियर एट द टाइम ऑफ डूइंग। So what do you mean by at the time of doing the act? So, okay, so ये question आता है कि नहीं? So this is one very relevant question कि जैसे मान लो person is unsound from this point of time, है ना, ये इसके unsoundness continue हो रही है, यहाँ पे कहीं crime किया उसने, तो what is the relevant? So if I ask you the question, ध्यान से सुनना, the question is that what is the relevant time जिसका अनसाउंडनेस नीड्स टू बी प्रूव्ड। अक्यूज्ड को कौन सा वो रेलिवेंट टाइम है जिसमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि इस वक्त में अनसाउंड था, वो ये वाला टाइम है, वो वही टाइम है जब क्राइम हो रहा था। एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट मीन्स एट द टाइम ऑफ डूइंग दैट क्राइम, दैट ऑफेंस, इसी वक्त का अनसाउंडनेस प्रूव करना है। सो द अनसाउंडनेस शुड बी एट दिस प्रेजेंट टाइम. So he is not required to prove the unsoundness after doing that or the unsoundness before doing that. समझ रहे हो कि नहीं? ये वाला unsoundness prove करना है. But here lies a very difficult situation. क्या ये इतना easy है कि आप exactly इस point का prove कर दो कि I was unsound? क्या ये इतना easy है कि इस point का आप exactly prove कर पाओ? It is very very difficult. प्रूविंग कि एग्जैक्टली उस वक्त क्या हुआ मारते वक्त, या फिर सपोजिंगली मर्डर का केस था तो मारते वक्त ही वॉज अनसाउंड, इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, वेरी वेरी डिफिकल्ट. सो अब आप क्या करोगे? तो अगर ऐसा तो नहीं है कि अक्यूज को प्रेजुडिस कॉज होने दोगे. सो द अनदर थिंग इज, सिंस डायरेक्ट एविडेंस तो अवेलेबल होता तो अच्छी बात थी, लेकिन डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं है. So what you have to do, you have to prove the circumstantial evidence. तो आपको circumstances prove करने पड़ेंगे. तो आपको ये जो circumstances है ना, ये तो ये सारे circumstances prove करने पड़ेंगे. So prove these circumstances, circumstance 1, 2, 3, 4, 5, 6. और इन सर्कमस्टांसेस को जब आप कोर्ट के सामने प्रूव करोगे, सो कोर्ट विल मेक अ रीजनेबल इन्फरेंस फ्रॉम दीज सर्कमस्टांसेस दैट वेदर यू वर अनसाउंड और नॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, सो देखो तो क्या होता है ना कि आप ये प्रूव कर सकते हो कि इससे पहले ही वॉज बिहेविंग लाइक एट दिस पॉइंट नंबर 1 ही वॉज बिहेविंग लाइक एन अनसाउंड पर्सन, है ना, वो कुछ भी अनसाउंड वाला बिहेव था. तो अगर आप ये प्रूफ कर दो कि यहाँ पे अनसाउंड था, यहाँ पे अनसाउंड था, यहाँ पे भी अनसाउंड था, यहाँ पे भी ही एक्टेड लाइक एन अनसाउंड पर्सन, या फिर क्राइम करने के बाद वो सामने में आ गया और अनसाउंड पर्सन की तरह एक्ट कर रहा था, तो ये सब चीज़ जब आप प्रूफ कर दोगे तो अल्टीमेटली दीज थिंग्स विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कि वेदर वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अनसाउंड था या नहीं था. आई होप इट इज़ क्लियर. सो जनरली व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इस टाइम का अनसाउंडनेस, बट इस टाइम के अनसाउंडनेस सिंस डायरेक्ट एविडेंसेस आर नॉट अवेलेबल, सो आप यहाँ के सर्कमस्टांसेस को हेल्प करके प्रूव कर सकते हो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये अनसाउंड था. तो आप यहाँ के अनसाउंडनेस क्राइम करने के बाद के अनसाउंडनेस को यू कैन प्रूव. I hope this is clear, and the court will draw a reasonable inference that whether he was unsound or not. Okay, and the reasonable inference will be that he was actually unsound at the time of doing the act. Okay, unsound at the time of doing the act. Okay, now let's move forward. अब दूसरा है, at the time of the doing the act he was by reason of unsoundness of mind.
अब ये बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, व्हाट इज इट रेफरिंग टू? सो बेसिकली ये रेफर कर रहा है मेडिकल अनसाउंडनेस को, some medical mental disease को. This word is referring to some medical unsoundness, that is, it is showing that the accused is having or is suffering from some medical mental disease. How will you prove? बेसिक क्वेश्चन इज कि देखो यहाँ पे क्राइम के वक्त तुम अनसाउंड थे, ये तुमको प्रूफ करना है. अब तुम ये सारे वक्त का अनसाउंडनेस तो प्रूफ कर सकते हो, लेकिन तुम प्रूफ कैसे करोगे, है ना? तो तुमको ये प्रूफ करना है कि यू विल प्रेजेंट सम मेडिकल सर्टिफिकेट्स. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन शो टू द कोर्ट, यू कैन शो जज साहब ये देखिए, दीज ऑल आर सर्टिफिकेट्स दैट माई ट्रीटमेंट वॉज गोइंग ऑन फॉर दिस मेंटल डिजीज. सो आप ये सब सारे सर्टिफिकेट्स प्रूव करोगे. सो विल द कोर्ट सिंपली बिलीव अपॉन द मेडिकल सर्टिफिकेट्स? सो द क्वेश्चन इज कि क्या कोर्ट आपने सर्टिफिकेट्स दिया और कोर्ट उसको बिलीव कर लेगा? बिकॉज यू मस्ट अंडरस्टैंड, because you can also get fake medical certificates presented from the doctors. So there are chances of artificiality. Chances of artificiality cannot be ruled out at all. Hence court की ड्यूटी होती है कि even though certificates are given by you, court will cross check that whether the symptoms of unsoundness is matching with the एक्चुअल सिम्टम्स जो अनसाउंडनेस के बताए गए हैं, है ना, विटनेसेस द्वारा जो बताए गए हैं, द नेबर्स हैव टोल्ड इट, है ना, तो वो जो सिम्टम्स हैं वो डॉक्टर ने जो डिजीज़ बताया है उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं. ओके, सो द कोर्ट विल नॉट सिंपली बिलीव, द कोर्ट हैज़ अ ड्यूटी टू क्रॉस चेक. बट सपोजिंगली आपके पास कोई अनसाउंडनेस का सर्टिफिकेट नहीं है, बट स्टिल द डिफेंस वांट्स टू क्लेम दैट आई वाज अनसाउंड, है ना, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं गया, है ना, मेरे पास मेडिकल सर्टिफिकेट्स नहीं है. सो इन दैट केस इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द कोर्ट. ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, आप कोर्ट को रिक्वेस्ट करो. What can the defense do? The defense lawyer can himself get him examined, or if he has not, then he will request the court, and in that case it is the duty of the court to send the person to the medical asylum for getting the test conducted, right? जनरली क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे भी ना जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, अगर कुछ ऐसी बात होती है कि अक्यूज मेडिकली अनसाउंड है, तो जनरली आईओ इटसेल्फ एट द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन ही सेंड्स द अक्यूज for the medical examination. But if the IO has not done it, now it is the duty of the court कि prejudice ना cause हो किसी भी parties को, especially accused को ना cause हो, he will get the accused examined. Okay, I hope this is clear. Now let's move forward and see. This is I have written, the court will take doctor's opinion regarding the symptoms. You can read this things. Now let's move forward. Now next thing is that due to that unsoundness, he was incapable of knowing. So what he was incapable of knowing? He was incapable of knowing the nature of the act which he is doing. उसको समझ में ही नहीं आ रहा है that he is slitting the somebody's neck and he is thinking. नेचर का एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है कि अगर वो स्लिट कर रहा है नेक, बट ही इज़ टेलिंग कि जज साहब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज थिंकिंग, मुझे लग रहा था कि ये कोई आलू है ना, इट इज़ अ पोटैटो और मैं पोटैटो कट कर रहा हूँ. सो उसको नेचर ही नहीं समझ में आ रहा है व्हाट ही इज़ डूइंग, या फिर नेचर तो समझ में आ रहा है बट ही इज़ इनकेपेबल ऑफ नोइंग दैट द एक्ट इज़ मॉरली और लीगली रॉन्ग. ओके, मॉरली और लीगली रॉन्ग है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है. मतलब वो उसको पता है दैट आई एम कटिंग द नेक, मैं इसको मार रहा हूँ, बट मे बी उसको ऐसा लग सकता है कि भगवान ने मुझे आदेश दिया मारने के लिए. ही मे हैव सच डिल्यूजन, राइट? सो यू कैन थिंक दैट व्हाट आई एम डूइंग इज़ वेरी जस्टिफाइड, इट इज़ नॉट मॉरली रॉन्ग और इट इज़ नॉट लीगली रॉन्ग. सो उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और दैट इट वाज नॉट मॉरली और लीगली रॉन्ग. Next question which arises here is that why the word incapable has been used and not the word did not know. वो ये भी तो लिख सकते थे ना that the accused did not know the nature of the act or the accused did not know that the act was legally and morally wrong. लेकिन did not know नहीं लिखा गया.
word which was used was incapable. It was intentionally written incapable. और क्यों? रिलैक्स करने के लिए burden of proof. क्योंकि अगर वर्ड डिड नॉट नो लिख दिया होता ना तो स्ट्रिक्टली अक्यूज्ड को प्रूव करना पड़ता कि मुझे पता ही नहीं था. बर्डन ऑफ प्रूफ इन दैट केस वुड हैव बीन वेरी वेरी हाई. सो इन ऑर्डर टू रिलैक्स दैट बर्डन ऑफ प्रूफ दे हैव रिटन द वर्ड इनकेपेबल. आई होप दिस इज क्लियर. सो वर्ड अगर ये डिड नॉट नो लिखा होता तो आपको डायरेक्ट एविडेंसेस प्रूव करने होते हैं, है ना, क्योंकि ये बहुत स्ट्रिक्टली आपको प्रूव करना पड़ता. बट चूंकि वर्ड डिड नॉट नो लिखा हुआ है तो हेंस यू कैन प्रूव द सर्कमस्टांसेस, है ना. और उन सर्कमस्टांसेस से बाय अप्लाइंग द टेस्ट ऑफ अ रीजनेबल मैन कोर्ट खुद इन्फर कर लेता दैट वेदर द अक्यूज वाज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और नॉट. रीजनेबल पर्सन का टेस्ट है, मतलब जज विल प्लेस हिमसेल्फ on the pedestal of a reasonable person and will judge that whether a reasonable person, if he would have done the same conduct, can it be inferred that he did not know the nature of the act, or from his conduct can it be inferred that he did not know that his act was morally wrong or legally wrong. If it couldn't be inferred, then the same state of mind will be imputed upon the accused and the accused will be given the benefit and he will be exempted. Okay, now let's read what Lakshmi versus State is saying. In this case, it was held that to claim protection of section 84, it is not that the person should not know an act to be right or wrong. Should not know यहाँ पे लिखा है. शुड नॉट नो से व्हाट कैन यू अंडरस्टैंड? शुड नॉट नो से ये समझ में आ रहा है ना आपको कि मुझे नहीं पता था. नहीं पता था मतलब यू आर डेलिबरेटिंग. इट मीन्स दैट यू आर डेलिबरेटिंग एंड देन यू आर सेइंग दैट आई डिड नॉट नो, है ना. सोचने समझने के बाद यू आर नोइंग दैट आई डिड नॉट नो. तो यहाँ पे आपकी कॉग्निटिव फैकल्टीज तो इंटैक्ट है ना, हेंस यू आर नॉट अनसाउंड. ओके, so the real test is not that you did not know. The real test is that you are incapable of knowing. That is, आप सोच समझ ही नहीं सकते हो. You cannot deliberate, you cannot find it out. Okay, so आपको देखना है कि क्या वो incapable था, वो फॉर्म ही नहीं कर सकता था. So when the guiding light, that is when your reasons, when your deliberating power is right, that is when you understand you have a capacity to distinguish between right and wrong. When that light is still flickering, that is when your mind is still working, then you cannot be protected. But if you are incapable, when you do not have the reasoning skills, then you are protected. Now let's understand that what we know about incapable of knowing. So incapable of knowing means either you are incapable of knowing the nature of that, I have told you what nature means, or you are incapable of knowing that what the accused is doing is wrong, either wrong or contrary to law. Okay, इन दोनों में ना वर्ड यहाँ पे और मेंशन्ड है नेचर के बीच में एंड डूइंग इज सेक. सो दिस इज पार्ट 1 एंड दिस इज पार्ट 2. सो अगर आप अनसाउंडनेस, इफ द अक्यूज इज गोइंग टू क्लेम द डिफेंस ऑफ अनसाउंडनेस, सो या तो आप ये प्रूव कर दो कि यू आर नॉट केपेबल ऑफ नोइंग द नेचर. जब आपको नेचर ही नहीं समझ में आ रहा है, that is when you are slitting the neck and you are not knowing that I am slitting the neck, rather you are thinking that I am cutting a potato. आपको नेचर ही नहीं समझ में आ रहा है तो ऑब्वियसली इट इज़ इम्प्लिसिट ना कि आपको ये सेकेंड पार्ट, दैट इज़ यू आर नॉट नोइंग दैट इट इज़ रॉन्ग और कॉन्ट्री टू लॉ. तो अगर जब आप नेचर प्रूव करोगे ना तो दिस सेकेंड पार्ट इज ऑब्वियसली इम्प्लिसिट इन दिस फर्स्ट पार्ट. तो आपको डिफेंस मिल जाएगा बिकॉज द वर्ड और इज रिटन ना फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में. सो यू कैन प्रूव आइदर ऑफ द पार्ट्स. लेकिन सपोजिंगली नेचर का आपको पता था, दैट इज यू द अक्यूज न्यू कि मैं नेक स्लिट कर रहा हूँ. ओके, सो नेचर का तो पता था. सो देन इफ यू वांट टू क्लेम द डिफेंस, you have to prove the second part. You have to prove that
द डूइंग इज रॉन्ग और कॉन्ट्री टू लॉ। अब देखो, कॉन्ट्री टू लॉ का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्री टू लॉ मीन्स इट इज लीगली रॉन्ग। तो ऑब्वियसली रॉन्ग का भी मतलब वही तो नहीं हो सकता ना, लीगली रॉन्ग, बिकॉज इन लॉ two things can never mean the same, two words can never have the same meaning. So contrary to law का मतलब है legally wrong है, तो wrong का मतलब भी legally wrong नहीं हो सकता. So wrong here means that it is morally wrong. So आप समझ में आया मैं क्यों यूज़ कर रही थी word morally? I hope this is clear. सो सेकेंड पार्ट में आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो एक्ट अक्यूज कर रहा है, भले उसको नेचर का पता था, बट द एक्ट इज मॉरली एंड लीगली रॉन्ग. नाउ आई एम यूजिंग द वर्ड एंड. मैं वर्ड एंड यूज कर रही हूँ जबकि यहाँ वर्ड और लिखा है. एंड में तो ये दोनों चीज प्रूव करनी पड़ेगी ना कि मॉरली रॉन्ग है, लीगली रॉन्ग है. सो व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड एंड? बिकॉज दिस हैज बीन इंटरप्रेटेड इन अ केस. And the Honorable Supreme Court has held that both these things need to be proved and not either of them. You cannot claim the defense by proving either it was morally wrong or either this thing. So आपको ये भी prove करना है, ये भी prove करना है. So this or has to be read as and this has been interpreted by Honorable Supreme Court. We'll see the case. और friends इसी को ना द थिंग विच यू हैव सीन कि उसको नेचर का नहीं पता था, ये जो दोनों पार्ट है ना, इसी को हम साथ में व्हाट डू वी कॉल, इन दोनों को ही हम साथ में वी से इट लीगल अनसाउंडनेस. आई होप इट इज़ क्लियर. सो मेडिकल अनसाउंडनेस थी, डिफेक्ट ऑफ माइंड था. डिफेक्ट ऑफ माइंड वॉज एट द टाइम ऑफ डूइंग द क्राइम, उस वक्त था. प्लस उस डिफेक्ट ऑफ माइंड की वजह से आपको नेचर का नहीं समझ में आ पा रहा था और यू वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ रॉन्ग और कॉन्ट्री टू लॉ. देन दैट मेडिकल अनसाउंडनेस गेट्स कन्वर्टेड इनटू लीगल अनसाउंडनेस. एंड सेक्शन 84 में जो डिफेंस मिल रहा है दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर लीगल अनसाउंडनेस एंड नॉट फॉर मेडिकल अनसाउंडनेस. आई होप दिस इज क्लियर. Because many times question is asked that what is protected under section 84, whether it is legal unsoundness or it is medical unsoundness. So you have to clear on this point that it is legal unsoundness which is protected. Now let's understand what is legal unsoundness. As I have told you, nature of the act or that it was wrong or contrary to law, and this or has to be read as and. The court, apart from proving the above elements, shall prove the latter part of the section. Above elements means at the time of doing the act he was incapable, so these are the above elements, and apart from this it has to prove the latter part of this section, which is this part. If only upon proving the latter part the accused will get the defense, and therefore the state of mind described in the latter part is called legal unsoundness. This is clear. Now the case which I was talking about, it is Bapu alias Kajraj Singh versus State of Rajasthan. Now let's see what Honorable Supreme Court has stated in this case. In order to take the defense of section 84, it is essential that the cause and effect relationship between what? So the cause and effect relationship between medical unsoundness एंड लीगल अनसाउंडनेस, ये दोनों के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आपको दिखाना पड़ेगा. इट शैल बी प्रूव्ड. इट शैल बी प्रूव्ड दैट द अक्यूज वाज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट. ओके, उसको नेचर का नहीं समझ में आ पा रहा था एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट. और इवन इफ ही वाज नॉट सो इनकेपेबल, मतलब अगर वहाँ पे केपेबल था, देन यू हैव टू प्रूव दैट ही was not knowing that what he was doing is wrong or contrary to law. So this cause and effect relationship needs to be proved. Now let's understand. अब ये ना टेस्ट ऑफ अनसाउंडनेस भी आते हैं. तो अनसाउंडनेस के लिए इन एंशिएंट टाइम्स there were many tests which if you want to know I can tell you that बहुत सारे टेस्ट हुए करते थे अनसाउंडनेस के, है ना. जैसे एनिमल्स पे भी बहुत सारे टेस्ट हुए करते थे. देयर आर मेनी टेस्ट. ओके, बट मेजर जो केस आया आपका दैट इज आर वर्सेस डेनियल मैकनॉटन का केस आया. इफ यू वांट टू नो द फैक्ट्स आई कैन टेल यू द फैक्ट्स. सो व्हाट हैपेंड इन आर वर्सेस डेनियल मैकनॉटन, देयर वाज वन पर्सन. ओके, सो
So what he was thinking that the then Prime Minister of England, Robert Peel, so he thought that Robert Peel has done him some injury and therefore he wants to take revenge from the Prime Minister. But क्या है ना, उस वक्त he mistook the secretary, which was Edward Dermont. He mistook the secretary for Robert Peel and he shot him. And now what happened is that अब उसने defense ले लिया that I am unsound. Okay, so he took the defense of unsoundness, and the benefit was also given, and there was huge hue and cry. Okay, very much of public revolt was there, and so 15 judge bench was constituted in House of Lords, and in this 15 judge bench, on 5 questions were decided, and the question number 2 and 3 were called as Macnaghten's rule. Okay, सो यही जो मैकनॉटन रूल है ये बेसिस बना हमारे आईपीसी के सेक्शन 84 का. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज आर वर्सेस डेनियल मैकनॉटन के पॉइंट्स. आर वर्सेस डेनियल मैकनॉटन सेज दैट एवरी पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी सेम. सिर्फ कोर्ट में अगर कोई पर्सन जाएगा, सेक्शन 105 है ना, 105 इंडियन एविडेंस एक्ट, व्हाट इट सेज, सेक्शन 105 इंडियन एविडेंस एक्ट सेज दैट the court will think that there is absence of special exceptions and the accused will have to prove. So the court will presume the person to be sane. Court will not think that okay, he is insane person as the trial commences. Court will take the presumption that he is sane, and if he wants to prove that I am insane, the burden of proof is upon the accused. He is free to prove that I am insane and get the exemption of section 84. So पहला presumption court का यही रहता है that the person is sane and he possesses sufficient degree of reason unless the contrary is proved, that until this fact is rebutted. Second is to establish the defense of sanity, it must be clearly proved that at the time of committing the act, I've told you, ये जो unsoundness आपको prove करना है वो पहले बात का unsoundness तो आप रेलिवेंट फैक्ट की तरह प्रूव कर सकते हो ना, बट मेजरली जो इन्फ्रेंस निकालना है कोर्ट को वो इस बात का इन्फ्रेंस निकालना है दैट एट द टाइम ऑफ डूइंग द क्राइम ही वाज अनसाउंड. सो एट द टाइम ऑफ कमिटिंग दैट, इफ द अक्यूज्ड वाज कॉन्शियस, okay, so if he at the time of doing the act he was not laboring in defect of reason but actually he was conscious, that is he was not unsound, है ना, तो फिर उसे डिफेंस नहीं मिलेगा. Next thing which is was saying that if at the time of doing the act the accused was suffering from partial delusion, तो अगर वो partial delusion से suffer कर रहा था, what is delusion? Delusion is basically a state of mind where cognitive faculties intact भी हो सकते हैं, मतलब हो सकते भी हैं. So partial delusion है then he will not get the defense, और अगर टोटल डिल्यूजन है तो डिफेंस मिलेगा. सो व्हाट वाज हैपनिंग इन दिस केस आर वर्सेस मैक, जब वो शूट कर रहा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू एग्जामिन हिज, ही वाज ट्राइंग टू टेक अ रिवेंज. ही वाज नॉट अंडर डिल्यूजन दैट ओके समबडी इज अटैकिंग मी, देयर इज एन एमिनेंट अटैक going on and therefore I am defending myself and therefore I am shooting. बिकॉज अगर वो सिनारियो होता ना कि आप उस डिल्यूजनल स्टेट ऑफ माइंड में हो कि कोई आप पे एमिनेंट अटैक कर रहा है और आपको खुद को बचाने के लिए उस पर शूट करना पड़ रहा है, तो इन दैट केस वो प्राइवेट डिफेंस भी हो जाता है ना. मतलब एग्जैक्टली तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है बट आपको यही लग रहा है ना कि प्राइवेट डिफेंस में आप कर रहे हो, तो दैट वुड हैव बीन गुड. बट यहाँ पे जब उसने शूट किया था एट दैट टाइम नो एमिनेंट अटैक वॉज गोइंग ऑन, ही वॉज वॉन्टिंग टू टेक अ रिवेंज. वो रिवेंज भले ही एक पार्शियल डिल्यूजन की वजह से थी कि द प्राइम मिनिस्टर हैज़ डन हिम सम रॉन्ग, बट उस वक्त तो नहीं थी ना, समझ रहे हो. सो इट इज़ नॉट अ केस ऑफ टोटल डिल्यूजन, ही इज़ डूइंग दैट आउट ऑफ रिवेंज. सो इट इज़ नॉट अ केस ऑफ टोटल डिल्यूजन, इट इज़ ओनली अ केस ऑफ पार्शियल डिल्यूजन, सो दैट वोंट बी कवर्ड. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी नेक्स्ट थिंग. So there was another case, A. Ahmed versus King. In this, the accused killed his own son of 5 years. Okay, he killed his own son in pursuance of a command given by someone in paradise, है ना, given to him in his dream. So he killed his 5-year-old son because
gods sitting in paradise commanded him to do so. There was also a similar case, Ashruddin versus King Emperor. So the accused had a dream. बकरीद के दिन, उस बकरीद से एक दिन पहले he had a dream, and in dream God told him, God itself came to his dream and God told him that you have to sacrifice for your 5-year-old son. So this is Ashruddin versus King Emperor. Okay. So what happened is Calcutta High Court ने तो उसको benefit of delusion दे दिया था. Okay, so this is also a delusional state of mind में उसने किया. But Calcutta High Court gave him the benefit of Section 84. But there was another case which was, you can note it down, the case was Lakshmi versus State. So in this case also, there was a brother who killed his own stepbrother, and he took the defense that my father came in my dream, my deceased or my dead father came in my dream, and he told me that my stepbrother has troubled him a lot, and therefore I need to kill him, enough, so that he could rest in peace. So Allahabad High Court told that we are not accepting the decision given by Calcutta High Court in Ashruddin case. Okay, because anybody can take that plea. Okay, so this delusional state of mind was not accepted. But you must appreciate that ये delusion के case में मिलेगा या नहीं मिलेगा, because as we have seen, पीछे जो मैकनॉटन का केस था, इसमें it was not given because it was total, earlier it was given but there was some revolt. So वहाँ पे बोला गया कि total delusion में मिलेगा, partial delusion में नहीं मिलेगा. अहमद वाले केस में दे दिया गया. नेक्स्ट लक्ष्मी वाले केस में विच आई हैव टोल्ड, लक्ष्मी वर्सेस स्टेट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, उसमें नहीं दिया गया. सो general rule is that delusion per se the person under delusion per se will not get the benefit of Section 84, but obviously it will differ from case to case. I hope this is clear. Now let's move forward and see. So there are a few questions which I would like to ask, but whether following amounts to unsoundness or not. Absence of motive. Absence of motive unsoundness को amount करता है या नहीं करता है? So absence of motive, merely because a person is doing something without any motive, है ना, बिना मोटिव के, जैसे सीरियल किलर्स हम देखते हैं, क्या उनके पास मोटिव होता है? नो, मैनी ऑफ देम डोंट हैव अ मोटिव. सो बिना किसी मोटिव के अगर आप किसी को मर्डर करते हो, सो पर से इट डज नॉट अमाउंट टू अनसाउंडनेस. ओके, सो absence of motive does not amount to unsoundness. Next is brutal way of doing a crime. So you have seen that many crimes are done very brutally. For example, एक murder हुआ है and the whole body is chopped into pieces. Okay, so बहुत ही brutal तरीका है कि आपने मारा ही नहीं, you not only stabbed the person but you also have cut his body into pieces. So this is a very brutal, very heinous way of doing a murder. So that by itself will not amount to unsoundness. Okay, so यहाँ पे brutal way of doing a crime भी per se unsoundness नहीं हो जाएगा. Next is incessant intoxication. As I've told you कि अगर if a person takes incessant intoxication, if he takes too much of ganja and his brain cells are damaged beyond repair, so that will not remain mere intoxication, that will come under unsoundness. So yes, in this case defense can be given. Next is offense committed in anger, fury or irresistible impulse. Irresistible impulse is where you could not resist doing it. Okay, आपको इतना गुस्सा आ गया, you had so much of anger within you that you simply could not control it and you did the crime. Okay, so ये भी पर से unsoundness नहीं हो जाएगा. पर से आपको गुस्सा आना ये सब unsoundness नहीं हो जाएगा. But obviously देर आर सम सेक्शंस जहाँ पे आप डिफेंस ले सकते हो, है ना. दैट इज़ इफ अगर आपने इरेजिस्टिबल इम्पल्स में कर दिया है ना, सो यू कैन व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन प्लीड इट एज डिफेंस. मतलब आप स्पेशल डिफेंसेस में जा सकते हो. यू कैन टेक डिफेंस अंडर एक्सेप्शन 1 ऑफ मर्डर, सेक्शन 300. यू कैन टेक डिफेंस दैट इज आई हैव डन द मर्डर इन grave and sudden provocation. Or you can take defense under exception 4, that is sudden fight due to sudden quarrel. But per se it will not amount to unsoundness of mind. I hope this is clear. Now let's move forward. This was the end. Thank you for watching it.